So, hello everyone. Today, welcome to Traders Talk. And today, we again have a very interesting guest with us. So, Mr. Vijay is joining us today, and he'll be throwing some light on his trading styles and the how he trades into the markets and how he handles the volatility, risk management. We have a lot of ground to cover today. I think the session is going to be very interesting today. So, very excited to meet you, Mr. Vijay. Yeah, thank you, Suraj. You're like a bright sun shining, like Suraj. Thank you. Yeah, Thank you so thank you much. for inviting me. I'm really happy to be here. It's our pleasure. It's all our pleasure. So, first of all, keeping everything aside, sir, I love your name. So it's called Sainik. It's a pseudo name. So I would like to know the history of why you are called Sainik. Yeah. I did my schooling in Sainik school. So Okay. Sainik school, Bijapur. Every state has got one Sainik school. So we trained to join the armed forces. So I did my schooling between 5th standard and 11th standard in Sainik school, Bijapur in Karnataka. And when I was writing for Money Control message board about 20 years ago, so they encouraged us to have a pseudonym. They didn't want our names. So I picked up this name, and that name has stuck because a lot of people know me from my Money Control message board since 2002. And so they said all my analysis and all that. So they said, why don't you keep it? Otherwise, my name was there on Twitter. I have removed that and now changed it to Sainik. But I have mentioned in my bio that my real name is Vijay. Yeah. Correct. But it's a very interesting name, and I think a lot of people on Twitter know you by that name. And Yes, that's correct. Yeah, that's true. That's true. super. So, as we were just interacting some time back, like today was a superb session for you, a trading session. So, how was it today? How did you trade today? And what was your style for today? Like today being a slow day, it's 28th of June, that's a Tuesday, normal day. So, how was it for you today? Yeah, see, I am basically I'm a market person. Means I trade everything which moves. So today not much moved, but still I anticipated movements. So for instance, I do trade daily, though I'm not really a day trader. So I did about 12 instruments today. Normally I do 10 to 12 instruments on a daily basis. This is just for me to understand what the market is doing. I'm also a BTST kind of guy. I'm also a swing trader. I'm also a long-term investor. So I would like to be labeled as a macro guy who looks at markets and a teacher. I have taught at Stella Maris girls. I was the only man in the girls' college for 6 years. Oh, I'm more like a teacher. So I've taught in various other management institutes, engineering places. I go regularly as for teaching. That apart, I love anything to do with the market, 24 by 7, 365, I'm there. So today, specifically, you see, I have been mentioning this for quite some time, that probably we'll have the mother of all short squeezes in the next few days. Now, I seem to be an outlier because most people, if not, I would say, if not all, are looking at this market very cautiously. They believe that we are in a bear market, we will see lower lows, and at best, we will bottom out sometime in September, October. In fact, today, the gentleman from Bank of America was mentioning on CNBC that the earliest we can expect is September, October. In my opinion, however, the markets have bottomed out in March. The bear market, in my opinion, is over, which is a dramatic statement to make, but I'm fully convinced about that because of data. And so today was a day which was going to be the beginning of a short squeeze. So I knew, I mean, there was high probability that today will close in the green, though it opened, I think, 100 and odd points away. And correct. so India was not there in the first 2 hours, but I'd still keyed in my rates to buy as well as to sell. So I was able to get very good rates in the morning to buy. And somewhere in the afternoon, when I think mid-afternoon, it went up around 12:30 or something like that. I was not there both times, and they got done. So to that extent, out of 12 trades I did today, 11 came, 11 very successful, which is a very rare occurrence. Very rare occurrence. I tell people that my strike rate is 50%. Anything above 50%, it is an aberration. So today was an aberration that way. Okay. So therefore, so I was very clear that today will be the day of Reliance, and it will be the day of auto stocks, and it will be the day of tech stocks.
and some pharma. And so I trade, when I trade across the board. I don't have any one particular sector or something. I look at stocks rather than sectors or indices and then trade on that. So I have been trading long every single day since May 12th. May 12th is the day when Nifty went down to 15,700 and 770 or 800. Let's say 15,800. I was short for the entire period between July of last year till May 12th. I hardly took any long positions, whether it's intraday or swing or a little bit long term or BTST. But from May 12th, I have not taken a single short position. I have not taken, because I believe strongly that we have moved on to the beginning of a bull market. However improbable it may sound, because how can you think they will have a bull market in this kind of thing? But I have my fundas clear, and therefore I didn't want to get distracted by trying to do both ways. I am like an elephant. I don't do this, one day I'll go this way and one day that is not possible for me. I study deeply, and when I take a view, the view is last for months. So it lasted for months between July and May, nearly about 10 months on the short side. And now we are already more than 45 days, and it's been on the long side. Though the Nifty has broken that 15.8 when I became bullish. But that is okay as far as I'm concerned, because I've seen these kind of markets, and this is a very typical market, typical beginning of a bull market it is. So I am an outlier that way. So today was a good day to that extent. Got it. So it sounds very interesting when you tell the audience that during such bear markets, like where there are blood on the streets, you are saying that it's a bullish market now. So it takes really guts to go with that sentence in itself. So I can truly assure the audience that you have a deep understanding of the markets, and your research is so deep rooted that you are well able to comment on the market, or maybe take a right view or position on the market wherein you are bullish in such markets. So really hats off for that. So Vijay ji, if you don't mind, we'll be keeping this session Hindi plus English for the audience. That's what we get request from the audience. या जो भी जैसे भी आप हिंदी में पूछ सकते हैं. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं मद्रास में 30 साल रहा हूँ. वो मद्रास का हमारा कृष्णमाचारी श्रीकांत का हिंदी में बोलूंगा, तो वो तो हंसने वाली है, फिर भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए. और जो सीरियस मार्केट बात करते हैं हम, थोड़ा बहुत मजाक भी होना चाहिए. नहीं, डेफिनेटली यही गोल है सर. एक्चुअली मजाक ही मतलब it's good to bring happiness into the life, because traders जो है वो काफी एक lonely profession है, and you are always in the laptops, on the screens, researching on the things. So there should be smiles all around. So सही बात सर, सही बात. So, sir, coming to your trading style, you already threw some light how you perform, what's your hit ratio, around 50% you suggested. So, अगर मैं बात करूँ सर कि आपके expertise किस में है, मतलब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल आपने बता दी, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है, एंड आप रोज अगर आपको कहा जाए कि आप एक चीज चुने जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं इतने ईयर से, तो वो क्या होगी आपके हिसाब से? कौन सी टाइप की ट्रेडिंग में आप कर रहे हो? तो मैं एक्सपर्टीज नहीं बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है. मैं 30 साल से मार्केट में हूँ. 1991 जो प्री हर्षद मेहता बोलते हैं, 1992 हर्षद मेहता का जमाना था. मैं 1991 जब हमारा पहला बजट, रिफॉर्मिस्ट बजट हुआ राजीव गांधी की हत्या के बाद, उस समय से मैं मार्केट में हूँ. तो मेरा 31-32 साल हो गए जब मैंने शुरू किया. मेरा इतना ही मेरा क्या है, मेरा बहुत बड़ा पैशन है. स्टॉक मार्केट इज माय बिगेस्ट पैशन. मेरा बेसिक डिग्री इंजीनियरिंग है, और जब मैं इंजीनियरिंग में था 1982 में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो टाइम बेंगलुरु में मैं रोजाना कॉलेज के बाद मैं खाना खाने के बाद, लंच के बाद मैं स्टॉक मार्केट को जाता था. स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में बैठता था. ऐसे कुछ पैसा भी नहीं था, मगर ये 100 शेयर या 50 शेयर खरीदता था और गप्पे मारता था, नहीं तो वो भगाएंगे आपको स्टॉक ब्रोकर. वो जमाना भी ऐसा था 1982 में. तो बहुत मंदी थी, क्या बिजनेस भी कम थी,
तो वो दे यूज्ड टू इंडल्ज मी एंड गिव मी अ कप ऑफ कॉफी एंड आई लव दैट बिकॉज आई डिडंट हैव मनी, रुपया नहीं था, तो वो बेंगलुरु में। तो ऐसा मेरा मेरा इंटरेस्ट बढ़ा एंड जब मैं एमबीए किया जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई से, तो मुझे वो टाइम भी मैं दलाल स्ट्रीट को जाता था, उधर वो सब ब्रोकर से ऑफिस में बैठ के ऐसे ही गप्पा मारता था, ऐसे ही चिट चैटिंग। When I joined IMR, Indian Market Research Bureau in Kalagoda, which is close to the exchange, again lunchtime, मैं जाके I used to what shall I say participate. Only in 1991, that is 9 years after I first bought my share, then I became a professional in the stock market. So मेरा वो टाइम पे क्या था, you could not be a trader. क्योंकि क्या है, ओनली स्टॉक ब्रोकर्स कुड बी ट्रेडर्स। अभी हम वी कैन नॉट बी ट्रेडर बिकॉज 2% की ब्रोकरेज थी। सो इफ यू डू 2 and 2 4% यू गो ओनली इन ब्रोकरेज। प्लस वो जमाना था रिंग ट्रेडिंग। रिंग बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता था, जब भी हम ब्रोकर को बोलेंगे कि परचेस करो, वो मैक्सिमम रेट डालते थे, क्योंकि क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं था। अगर हम बोले सेल करो बोले तो वो लोएस्ट ट्रेड में हमको सौदा देते थे। तो इट इज इम्पॉसिबल टू बी ए ट्रेडर वो जमाने में था। अगर ट्रेडर होना था तो सिर्फ बदला सिस्टम था वो टाइम पे, ओनली इन बदला यू कुड बी ए ट्रेडर एंड दैट ऑल्सो ओनली सेलेक्ट पीपल वेर अलाउड टू ट्रेड। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन मद्रास स्टॉक एक्सचेंज क्या था, इट वाज लाइक इट इज कॉल्ड अ कैश मार्केट। बेंगलुरु मुंबई में क्या था, इट वाज एवरी फोर्टनाइट सेटलमेंट था, whereas in मद्रास एवरी वीक में 3 सेटलमेंट्स थे, उसके बाद 2 सेटलमेंट्स हुए। तो यू कैन नॉट डू स्पेकुलेशन, एट बेस्ट यू कैन डू स्पेकुलेशन फॉर 2 days, इतना ही था। एंड डे इंट्राडे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2% ब्रोकरेज जाता था। सो 4% बोले तो स्प्रेड ही नहीं मिलता था। जब भी मैं फ्लोर में भी गया तो थोड़ा बहुत कंसेशन मिला मेरे ब्रोकर से, उसमें भी 1% ब्रोकरेज था, 1 और 2%। तो वो समय जॉबर्स रहते थे, फिजिकल ट्रेडिंग था ना रिंग में। तो वो क्या होता था, वो 2 वे कोड देते। अगर रिलायंस बोले तो 1000-1005 ऐसा बोलेंगे, 1000 he will buy, 1005 he will sell to me. So a 2 way quote में क्या होता था, 5% will go away in the quote itself, in the quote. So अभी क्या है, I can't buy from him at 1005 and then I have to find somebody who will buy from him above 1010 because that guy will take the quote as 1005, 1010 ऐसा। So it is very, वो समय बहुत तकलीफ था, क्योंकि क्या है, हम ऑर्डिनरी सब ब्रोकर थे, जो फ्लोर ब्रोकर बोलते हैं। ब्रोकर्स तो 167 ब्रोकर्स थे, हम 4 सब ब्रोकर्स थे एक ब्रोकर के नीचे। तो मैंने वो समय मुझे ट्रेडिंग तो आई कुडंट डू ट्रेडिंग। सो टिल 95 जब हमने मेरा फ्रेंड्स ने एक एनएससी मेंबरशिप को अप्लाई किए और एनएससी मेंबरशिप मिला, उस समय तक मुझे तो ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, वो टाइम पे मेरा तो पैशन था स्टॉक मार्केट। मैंने उसमें ये जो क्या बोलते हैं मैक्रोस, मुझे मैक्रोस बहुत पसंद थी, क्योंकि मेरा बेसिक ग्राउंडिंग रिसर्च में है, मार्केट रिसर्च। एंड उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग में था, ओगिलवी बोल के। आई यूज्ड टू हैंडल टाइटन एंड पॉन्ड्स। टाइटन वाज आवर लार्जेस्ट क्लाइंट्स, O&M. Now Titan is there, Cadbury's, Asian Paints, Pidilite, वगैरह वगैरह. It's the largest ad agency. So I was in charge for Titan. So I used to go to Titan every day and interact. वो time पे I used to buy Titan stocks, but I was not trading in Titan. I was just buying and keeping it, like Sundaram Fasteners वगैरह वगैरह. बहुत सारे South companies मैंने purchase किए, but कम 50 shares, 100 shares. मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करूं, बात करूं टाइटन मैनेजमेंट के साथ, टीवीएस मोटर्स मैनेजमेंट के साथ, इधर अशोक लेलैंड चेन्नई में, ऐसे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज थे उसको मैंने सर्विस किया एज अ मार्केट रिसर्चर और एज एन एडवर्टाइजिंग। तो मैंने धीरे धीरे ये मैक्रोस हाउ विल इट अप्लाई टू कंपनी, ऐसा मैंने स्टडी किया। तो मेरा ट्रेडिंग से कुछ देयर वाज नो रियल रिलेशनशिप, क्योंकि क्या है, वी कुडंट ट्रेड। ओनली 95 अक्टूबर में
जब हमारा फ्रेंड्स ने वो परचेज किए, बट दे वांटेड क्वालिफाइड पर्सन, मैंने क्वालिफिकेशन थी क्योंकि मैंने 4 साल फ्लोर में काम किया था सब ब्रोकर. सो दे अपॉइंटेड मी एज पर्सन टू टेक केयर ऑफ एनएससी ऑपरेशंस. वो टाइम पे आई हैड टू नो ब्रोकरेज, क्योंकि मैंने वो टीम का, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम. We had to pay, not that we didn't have to pay, but very less brokerage we have to pay because we are a part of the management team. तो वो टाइम पे मैंने पहला ट्रेडिंग शुरू किया अक्टूबर नवंबर 1995 से. एंड सिंस देन ऑफ कोर्स टुडे आई एम नॉट कनेक्टेड. वी हैव क्लोज्ड आवर ब्रोकरेज फर्म इन 2020 बिकॉज ऑफ कोरोना. बट अभी तो मैं फ्रीलांसर हूँ. बट बिटवीन 1995 एंड 2020 मैंने ट्रेडिंग किया. वो टाइम पे मैंने सीखा थोड़ा बहुत कैसा करने का. वो टाइम सेटलमेंट थी 1 वीक सेटलमेंट, वेडनेसडे टू ट्यूसडे. डेली सेटलमेंट्स नहीं थी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं थे. तो मैंने सो यू कैन बाई एंड होल्ड ऑन टिल ट्यूसडे, बाई ऑन वेडनेसडे, होल्ड ऑन टिल ट्यूसडे. वो मार्जिन्स भी बहुत कम थे वो टाइम. देयर वाज नो ट्रांजैक्शन चार्ज, नो सेबी चार्ज, कुछ नहीं थे. वो जमाना जब एनएससी चालू किया, क्योंकि दे वांटेड टू कम्पीट विद बीएससी. सो उसमें बहुत सारे हमको एडवांटेजेस थे कि यू कैन ट्रेड ऑलमोस्ट विदाउट एनी चार्जेस. देयर वाज नो चार्जेस, नो मार्जिन्स. तो वी वर हैविंग लॉट ऑफ कैपिटल रिलीज्ड बिकॉज ऑफ दैट. तो वो टाइम पे हमने शुरू किया, क्योंकि क्या, सो बिकॉज इट्स आवर ओन बिजनेस. तो थोड़ा बहुत हम भी ट्रेडिंग किए, बहुत मार्क खाए, बट बहुत सीखे. अब भी मार्क खाता हूँ, तो अभी सीखता हूँ. ऐसा नहीं कि 31 साल हो गए, 32 साल हो गए कि हमको सीखने का नहीं. ये रोजाना आई मेक न्यू मिस्टेक्स एंड आई विल लर्न. इसलिए मैं बोलता हूँ 50 to 60% मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है. आई माइट हैव डन 90,000 ट्रेड्स इन माय करियर. So about 35 to 40,000 mistakes I would have done. So it's a big number. 35 to 40,000 mistakes बोले तो बहुत बड़ा नंबर होता है. फिर भी क्या है, हम सैनिक जैसे जब हम वॉर को जाते हैं, हम मरे नहीं, अभी जिंदा है. तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट 30 इयर्स भी ऐसे जिंदा रहूं. उसके बाद ही फाइनल डे एफ टू पंच करके भगवान को प्यारे होने का. तो हमने ऐसा सोचा है कि नेक्स्ट 30 इयर्स ऑल्सो वी शुड. अभी 61 है मेरा एज, तो ऐसा चाहिए. सो मेरा ट्रेडिंग ऐसा है कि आई विल ट्रेड एनीथिंग विच मूव्स. आई डोंट बॉदर. ऐसा नहीं कि ये मैं स्विंग ट्रेडर हूँ या मैं ऑप्शंस ट्रेडर हूँ, या क्योंकि क्या है, हमने we are part of the capital market since the growth of capital market. वो जमाने में there was no trading, then futures came, options came, then बदला ट्रेडिंग से 5-day सेटलमेंट, सब कुछ हमने देखा है. इसलिए क्या होता है, कभी कभी वो टाइम पे न्यू टेक्निक्स कम्स, सो वी विल अडॉप्ट द टेक्निक्स. सो अडेप्टेबिलिटी है मेरा. तो एक्सेप्ट मोबाइल ट्रेडिंग इतना अच्छा नहीं आता मुझे. नहीं तो ये जो इंटरनेट ट्रेडिंग वगैरह, वी आर देयर. सो आई एम अ मार्केट पर्सन. आई विल डू एनीथिंग in the market. I have an opinion on everything, many times opposition on everything. What? So, huge experience, and as you already said, it takes really some efforts to contribute, in the sense where you are saying that 50% is the hit ratio, 50 to 60% is the hit ratio, and it's going to give the best results. I'm pretty sure about it, because I know that you have been doing very well in the market. So it really takes guts to say. आज कोई भी आके सोशल मीडिया पे बोलता नहीं है कि मेरा 50 to 60% है. Everyone claims that it's about 70% or something, जो holy grail एक formula है. But being a true trader or a justice towards the market, so आपने वो बहुत ही सही तरीके से बोल लिया, और hats off to that. So sir, what सो आपने बताया कि एक्सपर्टीज आपने हाईलाइट की. तो सर, अगर आप ऑडियंस को एजुकेट करना चाहेंगे कि व्हाट शुड बी द indicators, or maybe some formulas, or maybe some techniques which they can use in their trading career, it would be really helpful for them, and how they can actually generate alpha out of such tough markets. As you rightly said, the markets are really tough right now. The volatility is at its peak, and people are worried about the bloodshed on the market. So what do you suggest? What should the audience do on the technical front?
या जो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, ये दो तरीके से होते हैं, ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को एडवाइस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडर्स। ट्रेडर्स में भी दो तरीके होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स मार्केट में बहुत कम है, क्योंकि क्या है, जब मैंने ट्रेडिंग किया, मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं किया, मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किया। लॉन्ग टर्म बोले तो 1 ईयर, 1 ईयर। तो मैंने एक पोजीशन लेता था, 1 साल तक वही पोजीशन पे रहता था। तो आजकल कोई ऐसा नहीं करता। अभी भी मैं 3 महीने का पोजीशन लेता हूँ, 3 महीने, क्योंकि मैं जो बोलते हैं, मेरा मैक्रो इज माई व्हाट चले से माई लव। सो इसलिए मैंने सोचता हूँ कि ये दीपावली में क्या हो जाएगा। तो मैंने आई विल थिंक अबाउट दीपावली, I will think about midterm elections in US, which is in November. So between now and November, how will Fed react? How will ECB react? How will Biden react? How will our monsoons, when they end in September, कैसे रहेंगे? तो क्या होगा नेक्स्ट क्वार्टर, ये जून का क्वार्टर का रिजल्ट छोड़ो, मैंने सोचता हूं कि अक्टूबर में क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो सो आई थिंक फर्स्ट एट द मैक्रो, देन आई ड्रिल डाउन एंड ब्रिंग इट टू micro up to day trading. So it is always, I will never start from day to macro. I will always come from top down approach. जब मेरा टॉप डाउन में मुझे ये सिनेरियो दिखती है, तो मेरा रोजाना इट बिकम्स वेरी इजी। फॉर इंस्टेंस, नाउ आई फर्मली बिलीव दैट वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ अ बुल मार्केट, वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर। तो मैं क्या करता हूं, मैं कभी भी शॉर्ट नहीं करूंगा। May 12 से मैं शॉर्ट नहीं किया है। So what happened? Then you buy on the decline. That is the first basic thing. So the moment you are confused, now ऐसा नहीं कि मैंने सोच रहा हूं कि वो मार्केट बुलिश में ही रहेगा, क्या मालूम 3 हफ्ता नीचे भी गिर सकता है, या it may become a bearish market because some new development may come which I am not aware. But knowing conditions right now and thinking aloud कि क्या हो सकता है, उसके बाद में एक सिनेरियो ड्रॉ करके मन में मैंने ये स्ट्रेटजी बनाया कि अब भी ये टाइम पे मैं ओनली लॉन्ग आई हैव टू टेक फर्स्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने मेरा 5 ब्रांच थे इन माय करियर, एंड आई हैड अ ब्रांच इन मुंबई। नोबडी फ्रॉम चेन्नई हैड अ ब्रांच इन मुंबई, नो ब्रोकर। मुंबई फेलोज विल हैव अ ब्रांच इन चेन्नई, मगर चेन्नई से कोई ब्रांच नहीं थे। एंड ये 2 बड़े ब्रांच, मेरे से बड़े ब्रांच थे चेन्नई में, और एक बेंगलुरु में ब्रांच था। और मैंने एनएससी में, मैंने एनसीएफएम में कोचिंग दिया, और मैंने बोला कि आपको स्टेला मरीज में मैंने 6 साल पढ़ाया, और रोटरी क्लब वगैरह वगैरह में मैंने बहुत सारे स्पीचेस देता हूँ, फ्री सेमिनार करता था। वो वगैरह देख के मैंने आई माइट हैव सीन एटलीस्ट सम 30-40,000 एक्चुअल ट्रेडर्स इन माय लाइफ। 30-40,000 I would say, because 30 years ये एक्सपीरियंस से आता है। ये क्या, इट इज नॉट अ बिग थिंग व्हेन यू आर 30 years एक्टिव इन द मार्केट, एंड व्हेन यू हैव इन माय एक सब ब्रोकर थे मद्रास में, इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज बोल के, वो हिज क्लाइंट लिस्ट इज सिर्फ 30,000 क्लाइंट लिस्ट। ओ तो हमारा क्लाइंट लिस्ट उतना नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको मैंने परखा हूँ, तो देखा हूँ कैसा चलता है, क्या करते हैं। एंड मैंने ये जो इंटर ब्रोकर मीट अरेंज करता था, सब लोग ब्रोकर को बुलाते थे अभी मद्रास में, और डिस्कशन करते थे, और उसका एक्सपीरियंस क्या है वगैरह वगैरह। पार्टीज में जब ब्रोकर के पार्टी थे, वो सब मैंने सुनता था कि क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये मेरा गलत क्या है, मेरी सही क्या है। मैंने ऐसा बना के मैंने आई हैव मेड सम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रैटेजी, ओवरऑल माय इन्वेस्टमेंट स्लैश ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो अभी क्या है, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल टेल एवरीबडी इज, व्हिच नोबडी विल लिसन टू मी, क्योंकि क्या कोई नोबडी विल फॉलो दिस, इज सिंपल। आप ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप ट्रेडिंग के बुक्स पढ़ो, बुक्स, जो बुक्स है पढ़ो, या अभी तो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट सुनो। क्या सर, मेरा जब मैं मेंबरशिप एनएससी मेंबरशिप चलाता था, मैंने 1993 से ट्रेडिंग के बुक्स खरीद के, when I at maximum peak was 350 books on trading alone with them. I had read every single one of them.
मैंने जब मुझे टेक्निकल एनालिसिस 93 में किसी ने बताया कि ये टेक्निकल एनालिसिस एक चीज होती है, मुझे पता नहीं था ये क्या क्या है टेक्निकल एनालिसिस। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो किसी ने बताया कि एक बाइबल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, आप उसको पढ़ो। तो मैंने वो 1993 में मैंने बहुत ढूंढा। एडवर्ड मैगी का बुक है वो, एडवर्ड मैगी बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। वो तो बड़ा पुराना बुक है, वो तो 1930s 40s का है एडिशन। उसमें तो सिर्फ क्या है, बार चार्ट्स है उसमें। तो मैंने वो मे बी 1000 पेज बुक है वो, तो इतना बड़ा बुक है, तो कोई देखा मैंने, एंड ब्लैक एंड व्हाइट है वो। सो मैंने ऐसे जब क्या बाइबल बोले तो आई रेड एवरीथिंग एंड री रेड अगेन एंड रेड। तो मैंने वो सब थियोरेटिकल जो भी वो लिखे हैं, मैंने वो सब कुछ अब्सॉर्ब किया है 1993 में। उसके बाद एक सब ने बोला ये एलियट वेव थियरी एक है बोल के, तो मैंने सोचा ओ ये एलियट वेव कौन सा है। सो हमने वो रॉबर्ट प्रिचटर बोल के अथॉरिटी इन एलियट। सो मैंने ढूंढा बुक, वो बुक तो नहीं मिलता था क्योंकि वो फॉरेन एडिशन थी। तो मैंने किसी को बताया कि हम अमेरिका से आ रहा हूँ तो बुक लेके आओ। तो वो बुक नहीं लेके आया, वो फोटोकॉपी करके लेके आया बुक। तो मैंने फोटोकॉपी वो एडवर्ड्स मैगी एंड रॉबर्ट प्रिस्टर का एलियट वेव थियरी दोनों फोटोकॉपी बुक लेके मैंने पढ़ा। वो टाइम कंप्यूटर्स भी नहीं थे, तो मैंने ग्राफ शीट पे ग्राफ डालता था, वो 34 फिबोनाची, तो 34 डेट्स बोल के लिखता था, और एवरी डे क्लोजिंग प्राइस बीएससी का, एनएससी नहीं था वो टाइम। तो मैंने ऐसा मेरा शुरुआत की। तो मुझे आई वांटेड टू लर्न। तो ये ग्राफ शीट हो या कुछ भी हो या फोटोकॉपी का बुक हो, वो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मुझे ये चाहिए था कि कौन सा मुझे एक बुक चाहिए। तो मैंने ऐसा बहुत सारे पुस्तक खरीद के मेरे फ्रेंड्स लेके आते थे, वो फोटोकॉपी करके देते थे, मैंने सब कुछ पढ़ा। और ऐसे ही मेरा लाइब्रेरी इंक्रीज किया। आई मीन रेगुलरली जो भी अभी 95 96 में थोड़ा बहुत बुक्स आने लगे मार्केट में, तो मैंने सब कुछ खरीद के बैठता, एक 2000 रुपए वन बुक। सो आई मेड स्पेंट अबाउट 10 लाख रुपीज ऑन ऑल द बुक्स, या इजिली। वो जो सुदर्शन सुकानी बोल के वो एनालिस्ट है, वो टेक्निकल ट्रेंड्स बोल के फर्स्ट टाइम टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर था, एंड ऑफ डे टेक्निकल। सो उसको मैंने सब्सक्राइब किया। ऐसा मैंने ये किया कि बिफोर यू डू एनीथिंग यू शुड बी परफेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग। जब आप क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं, उसके पहले ही आपको वार्म अप करने का, पैड्स डालने का, ग्लोव्स डालने का, सब कुछ, गार्ड डालने का, हेलमेट लेने का, सब कुछ अब पहले करने का। उधर जाके वो अंपायर को नहीं पूछने का कि सर हेलमेट किधर है, नहीं देंगे ना वो। तो हम तो मैंने पहले से प्रिपरेशन किया। जब मेरा एक भी ट्रेड नहीं किया था, एक ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड 1995 में, बिफोर 1995 आई रेड ऑल द बुक्स पॉसिबल। तो मैंने इतना ही बोलता हूं लोगों को कि विदाउट रीडिंग इफ यू कम टू मार्केट, आई एम 100% श्योर मैं बोलता हूं कि आप 5 साल नहीं टिकेंगे। जब मैंने शुरू किया 1991 में, मेरा जो दोस्त थे वो सब लोग बोले कि सर ये यूएस में एक कहावत, आई मीन इट इज अ फैक्ट एक्चुअली, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन 5 साल कोई नहीं बैठता। After 5 years, you are promoted as managing director or whatever thing. You are in a supervisory role. आप तो टर्मिनल के सामने नहीं बैठते हैं। अगर बैठेंगे तो some it must be your proprietary or there must be something special situations, नहीं तो ordinary trader नहीं बनते। वो बोले कि आपका क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल इज ओनली 5 years एज अ ट्रेडर। मैंने सोचा ये 5 years को 10 years कैसे करूं। जब 10 years आ गया, मैंने सोचा कि 15 years कैसे करूं, 20, अभी 32 हो गया, अभी भी जिंदा हूं, अभी भी ट्रेड एवरी डे टर्मिनल देखता हूं। तो ये कैसा हो सकता है? ये हो सकता है कि आपको ये फर्स्ट पहला पैर, यू मस्ट लव इट सर मोर देन योर वाइफ। माय वाइफ इज नॉट हियर, आई कैन टेल विद कॉन्फिडेंस कि यू मस्ट लव इट, एंड माय वाइफ सेज दैट यू लव मार्केट मोर देन, दैट इज अ फैक्ट एक्चुअली। सो अभी क्या करें, ऐसा हो गया। तो but it doesn't mean that I don't enjoy I enjoy running. I run a lot. I run half marathons.
आई वॉच टीवी शोज, आई डू एवरीथिंग, आई रीड। तो वो तो है, बट पहला पैशन, यू नीड पैशन इफ यू वांट टू सर्वाइव मोर देन 5 years। अगर आपको नहीं नहीं आप सिर्फ 5 साल के लिए आप एंजॉयमेंट करने के लिए ट्रेडिंग आए, तो you can enjoy, you can make money and you can lose money, बट मेरा जो भी आज मैं हूँ, मेरा फैमिली वगैरह, ये सिर्फ मार्केट से ही आया पैसा। इधर ये कोई मेरा ऐसा नहीं है कि so what should a person do? One is he should love the market. Second, he should read or he should listen. ये listening ability is very very important. People think it is not important. It is very important, very important. And once you listen to others, then you should listen to the market. Market every day will tell you, I am going to do this, I am going to do it. So that is very important. Now coming to specific techniques which you are saying. So मैंने बहुत सारे I will experiment with every technique. Any technique बोलो आपने, मैंने फिबोनाची बोलो, ये एलियट वेव बोलो, या MACD, मूविंग एवरेजेस, कुछ भी, मैं सब कुछ। I was the first person in जो नाइट राइडर बोल के एक कंपनी था, they used to sell टेक्निकल एनालिसिस, जो रॉयटर्स जो बोलते हैं, रॉयटर्स या ब्लूमबर्ग, ऐसा टर्मिनल। मैंने पहले ब्रोकर था चेन्नई में जो नाइट राइडर का टर्मिनल लगाया था। उसमें सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस वगैरह रहते हैं, वो कैंडल स्टिक्स चार्ट्स वगैरह। वो समय 96 में वो नाइट राइडर था, तो मैंने हैड परचेज दैट। नोबडी हैड परचेज दैट। मद्रास में मैं ही सिर्फ इक्विटी ब्रोकर्स में मैं ही था, सब लोग फॉरेक्स ब्रोकर्स वगैरह परचेज किए थे। सो फॉर मी एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई विल डू, एनीथिंग। ये सेमिनार कोई आएगा तो मैं घुस जाऊंगा। तो हर्षद मेहता आया, हर्षद मेहता को मैंने आई वेंट टू हिज सेमिनार, नॉट सेमिनार, ही वाज गिविंग अ स्पीच। जो भी आएंगे तो हमको पता है कि ये आएगा वो आएगा, तो घुस जाएंगे। तो कुछ ना कुछ सुनेंगे, क्या बोलता है कि हर्षद मेहता कौन है वो, हमको तो वी हैव नॉट सीन हिम, सो आई गॉन देयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका फिलॉसफी क्या है। सो लाइक दैट आई वाज वेरी कीन स्टूडेंट। सो अभी टेक्निकल एनालिसिस में आई हैव फाउंड आउट आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू रिक्वायर not more than 3 indicators, not more than 3. Okay, you have 300 indicators, you have to choose in between that. So मैंने अभी क्या करता हूँ, my wife is a better she understands markets better than I am in terms of the analysis. So she and me are sitting in the same room for 25 years, no divorce. अभी तक divorce papers नहीं हुआ है। हाँ, तो अभी क्या होता है, झगड़ा होता है ना, मियाँ बीवी को नॉर्मल टाइम में झगड़ा होता है, मगर ये तो स्टॉक मार्केट में है, वो बोलेंगे बाय, मैं बोलूंगा सेल, तो वी हैव टू प्रूव टू ईच अदर व्हाई वी हैव टू बाय और सेल। तो he also so between us we know what indicators to use. I use moving averages as the number one. It's a lagging indicator. I use that. Okay, because क्या होता है लीडिंग में, क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर्स जनरली डोंट वर्क। आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस। लीडिंग इंडिकेटर या एलियट वेव लीडिंग इंडिकेटर्स है, उसमें इतना कंफ्यूज करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं कि वो एक्स ऑफ एक्स, x1 ऑफ ए ऑफ बी ऑफ बी। वो तो मुझे एलियट वेव बहुत पसंद है। In the purest sense of Elliott wave, it is a lovely way to analyze the market. But in terms of confusion which people create, I think they're given Elliott wave a bad name. I've been a subscriber to Elliott wave international pressure for more than 10 years. So मैंने उसका न्यूज़लेटर सब कुछ पढ़ा है। मैंने इतना ही देखा है कि it's better to use a lagging indicator. Okay, lagging indicator means it's actually done. वो जो history है, तो if you know history, then you may be able to predict what will happen in the future. So that is why lagging indicator is very important. Leading indicator सब तो हमको क्या है, we want to say वे इंडेक्स किधर जाएगा, 17,000 जाएगा, 18,000 जाएगा या 14,000 जाएगा। That is हमको ये क्या खुजली होती है कि हमको बोलने का, हमको मालूम है कि हमको मालूम नहीं है। हम इतना ही बोल सकते हैं कि ये हो गया, इससे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो हमको ये बताए कि कल क्या होगा। कल क्या होगा किसने बताया, पता है, वो गाना भी है ऐसा, मैं गा नहीं सकता हूँ, मगर वो एक गाना है ऐसा। तो मैंने ये, इफ यू रिमेम्बर हिस्ट्री, वो बोलते हैं इफ यू फॉरगेट हिस्ट्री यू आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। वो मैंने सब लोग को बोलता है, यू मस्ट नॉट फॉरगेट हिस्ट्री। मैं बोस्ट नहीं करता हूँ, मगर अगर आपने पूछा कि आप इंडियन मार्केट का हिस्ट्री का सेंसेक्स का ग्राफ डाल दीजिए या निफ्टी का ग्राफ, मैं आई कैन ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम 1991 टिल नाउ बाय एंड लार्ज।
बाय एंड लार्ज। सो क्यों ये तो मेरा मेमोरी कुछ ऐसा नहीं है। मेरा आई फॉरगेट माय वाइफ्स बर्थडे, सो इतना मेमोरी नहीं है मेरा। मगर क्या है, इतना मुझे वो क्या सुख दुख, कभी खुशी कभी गम, कैसा चला मार्केट, वो सब मेरा मेमोरी में है। वो तो वही मेरा मेमोरी में है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अक्टूबर 19 2021 को 18,604 हुआ, तो आई विल रिमेंबर। पीपल बोलेंगे नवंबर में हुआ या अक्टूबर में हुआ, दे मे नॉट नो द डेट्स, लाइक आई विल से सम डेट, मोस्ट ऑफ द डेट्स बाय एंड लार्ज आई विल रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द नंबर्स आई विल रिमेंबर. Why? Because I would have traded on that day. That is the reason. Because I would have traded, I would have either made money or I would have lost money. I'll never forget when I lost money. Making money तो छोड़ो, हम तो that will come. अगर आपने जिंदा दिल से आपने कुछ फोकस से किया है तो आपको आएगा पैसा। जब भी मैं जब टर्मिनल ओपन करता हूँ, ये मेरा मंदिर है। करेक्ट, मंदिर है मेरा। ये अगर कोई इसको ये आके हा हू बोल के डांस करेगा, वो मिल गया टारगेट हिट ऐसा बोल, हम कभी भी नहीं बोलेंगे। आपको आज भी ये पता नहीं चलेगा कि मैं कितना लॉस किया हूं या कितना प्रॉफिट किया, कभी भी नहीं चलेगा। अब मेरा घर में भी नहीं चलेगा, मेरा लड़की को नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं चलेगा कि मैंने प्रॉफिट किया है लॉस किया। मेरा इमोशंस वही रहेंगे, क्योंकि मैं मंदिर जाके आया। अगर कुछ हुआ, कुछ हो, तो मेरा आई विल बी स्माइलिंग, बिकॉज व्हेन यू गो टू टेंपल एंड कम आउट, वेदर यू गेट एनीथिंग गॉडेस गिव्स यू एनीथिंग और नॉट, यू विल कम हैप्पी। तो मेरा ऐसे ही रहता है सर, इसलिए मैं ऐसा जिंदा हूं। नहीं तो कभी से कभी मैं आई वुड हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ मार्केट। ऐसा नहीं कि मैंने इतना लॉस किया कि पीपल मे नॉट रिमेंबर, नॉट नो, बट मैं जिंदा हूं इसलिए कि मैं इसको मंदिर देखता हूं। अगर देखो सर, आप जब स्टेज पे जाते हैं, अमिताभ बच्चन भी वो क्या बोलते हैं उसको, नमस्कार करके वो स्टेज पे जाते हैं। आप नहीं देखे होंगे। मैं कभी भी जो भी ये जो क्रिकेटर होते हैं या जो भी स्पोर्ट्स में, वो उसको जो अगर जैवलिन थ्रो होते हैं, जैवलिन को वो देवता मानते हैं। करेक्ट। तो दिस इज आवर प्रोफेशन, दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट से ही हमको पैसा मिलता है। तो हम बहुत ये क्या बारीकी से देखना पड़ेगा कि ऐसा हमारा लैपटॉप क्लीन रहना चाहिए, हम सेटअप करेक्ट सेटअप करना चाहिए वगैरह। इवन व्हेन यू सिट इन होम, यू शुड बी वेयरिंग प्रॉपर ड्रेस। ये ऐसा नहीं कि कुछ डाल के बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। यू शुड fully ready for as if you are meeting a person, ऐसा रहना चाहिए। So this is the discipline, this is small thing, ये बड़ा नहीं है, मगर ये आपने किया तो इतना आपका कॉन्फिडेंस वगैरह वगैरह जाता है। So पहले मैं बोल रहा हूँ, you have to have passion, you have to read or listen, and third is treat it like a temple. This is not a casino, this is not Bangkok, it is not. मैंने इस देखा, बहुत सारे लोगों को देखा कि अगर वो 1,000 रुपीज या 10,000 रुपीज प्रॉफिट करे तो वो ट्विटर पे डालेंगे 1 लाख प्रॉफिट किया, 10 लाख प्रॉफिट किया। मैं भी मेरा ट्रेड्स मेरा टेलीग्राम ग्रुप में, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ वंस इन फ्राइडे टू सी पीपल, बट मैं कभी भी क्वांटिटी नहीं डालता हूँ। मैं बोलता हूँ आई बॉट दिस, सोल्ड दिस, प्रॉफिट से 10 रुपीज, 10 यूनिट्स प्रॉफिट, इतना ही बोलता हूँ। करेक्ट। So bought it, sold it at a loss, 20 units loss. Oh, I never reveal quantity, therefore you will never get the value. So मुझे से value से मैं क्यों करूं? वो habit you should leave away. Correct. But these are the small things, sir, which I can tell. I think I've taken too much time. Yeah. No, it's your time, sir. It's your time. Yeah. आप जो बोल रहे हो ना, I think you change the perspective, क्योंकि जो आपने बोला ना कि ये छोटी चीज है, which I also somewhere believe in your thoughts, ये छोटी चीज नहीं है सर, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि एक ट्रेडर जब घर पे बैठता है सुबह 8:45 बजे या 9 बजे उठता है, या टर्मिनल के सामने आ गया, सीधा प्री मार्केट देख रहा है, ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा है, so that's a very important time. You should be fresh, you should be praying your respective gods, and you should be giving respect to the market. And मतलब मैंने काफी सारे ट्रेडर स्टॉक किए, दिस इज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि आपने जो व्यू दिया है मार्केट के ऊपर,
दैट्स नॉट ओनली सेइंग कि भाई तुम मूविंग एवरेज लगा लो प्रॉफिट कर लोगे या एलियट वेव लगा लो प्रॉफिट कर लोगे. यहाँ पे यू आर शेयरिंग समथिंग व्हिच इज वेरी पर्सनल टू यू एंड यू हैव लर्नड इट फ्रॉम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो जैसे कि आपने बोला कि आपने 10 लाख मोटा मोटी खर्चा कर दिया है लर्निंग के ऊपर, बुक्स के ऊपर, वेरियस सेमिनार्स और XYZ स्टफ. यू आर ट्राइंग टू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू द ऑडियंस फॉर फ्री. आज यहाँ पे जो हम बैठे हैं इट्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी और मे बी वी आर नॉट इवन चार्जिंग फॉर दिस फॉर इवन अ पेनी. सो truly respecting for that and truly I can really. आप जब बोल रहे थे ना I had this vision going on in front of my eyes. जो आपने बताया कि आपने ग्राफ पे मतलब वो पेपर पे ग्राफ ड्रॉप करते थे, आज आप स्क्रीन पे लैपटॉप पे कर रहे हो. सो what a drastic change, what a 4% brokerage से आज brokerage free हो गया है. मतलब for you, you have seen the lows, you have seen the highs. For you, the experience is mammoth. It's majestic what you are sharing with the audience and I really feel lucky कि मैं आपके साथ बैठ के ये सुन रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा है सर कि अगर मैं करने जाऊंगा तो शायद आपको 30 साल लगे तो मुझे शायद 50 लग जाएंगे. मैं ऐसा सोचता हूँ बट आप वो मुझे शायद 1 घंटे के सेशन या आधे घंटे के सेशन में फ्री में आप बता दे रहे हो तो इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या बेनिफिट हो सकता है. See, it is one thing, sir. I tell people, if you don't have humility नहीं तो humiliation हो जाएगा. You must have humility. Humility नहीं तो humiliation. Market is ready to humiliate you every time. Correct. So you have to be humble. अगर humble नहीं हो तो 100% आप humiliation हो जाएंगे सर, क्योंकि मार्केट इतना इट्स अ वेरी विशियस एनिमल. आई एम सेइंग इट इज समथिंग विच इज लाइक योर नाइफ. अगर आपने नाइफ को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो यू विल गेट कट. आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माय आईज great traders who made like 1 crore per day. I've seen people making. अभी ये जो ट्विटर पे डालते हैं वो तो फेक रहेंगे मेरे ख्याल से. मैंने आंखों से देखा है. दे हैव कोलैप्स्ड. तो मर गए हैं. दैट इज ऑल्सो देयर. सुइसाइड कमिट किए हैं ये लोग. ऑर्डिनरी नहीं. ये हमने हर्षद मेहता को ही देखा सर. तो क्या हो गया उसका हालत. हमने केतन परेख को देखा है क्या हो गया. हमने बहुत सारे ऐसे जो ऑपरेटर्स बोलते हैं ये जमाने में, अब बोलते हैं वो जमाने में ये थे, वो सबको हमने देखे आंखों देखा. दैट इज आई हैव सीन इट एक्चुअली इन पर्सन. दोस पीपल, देयर बिहेवियर, देयर एटीट्यूड, देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देयर वे ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स, देयर वे ऑफ यूजिंग कार्स, देयर वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल इन द एयरक्राफ्ट. At when you are peak, you will be like that. And if you are arrogant, you will meet yours. They have all met. The arrogant people have all gone, sir. Correct. The people whom I have seen were very humble. You will not even know they exist. They have survived for these 30 years. I have seen my experience limited only to 30 years, 32 years. इतना बड़ा नहीं है कि मैं 40 साल या 50 साल का मैं बात करूं. मैंने देखा है. मैंने ये भी देखा है कि जब मैंने शुरू किया बहुत सारे ट्रेडर्स थे, मेरे से बड़े थे, मेरे से इंटेलिजेंट थे, मगर उसका डिसिप्लिन नहीं थे. डिसिप्लिन इज नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, डिसिप्लिन इज बिफोर ट्रेडिंग. मेरा एक क्लाइंट थे विश्वनाथन आनंद का फैमिली. विश्वनाथन आनंद व्हेन ही गोज टू प्ले चेस मैच, he would have gone for a jogging 10 kilometers. Oh, he will be perfect physically and then only he'll worry mentally. So क्या होता है, you have to be physically. That's why I always go for a run or a walk or something. I have to be physically fit. Correct. उसके बाद वो mental होता है. So I use that physical fitness की. I listen to a podcast and I listen to some great traders around the world. अभी क्या हुआ, everything is available. So you can listen to them and get some idea. Every single day I listen to 2 hours of podcast, either of local guys or of the this one. So 2 hours I walk. Not 2 hours, maybe 1 hour, 1 hour 40 minutes or 1 hour 45 minutes. About 10 kilometers I walk. 10 kilometers में मैंने ये सब के सब I would have found out post market जो करते हैं कोई analysts, they will talk about post market analysis on YouTube पे, या pre market में, या some on weekends, not weekends, even weekdays also, some big people talk of some strategies. वो सब कुछ मैंने सुन के I would have kept it in my mind कि कैसे इधर कैसे करूं. And every
time it doesn't work, I fail regularly, but doesn't matter. अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस, कल मैं बैठूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा, मेरा प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा मुझे मालूम नहीं, मगर जब कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं अब भी कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, मैं 30 साल अभी भी मैं ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजर बोला कि 92 को आप मर जाएंगे, तो मेरा 30 इयर्स है अभी, अगर लाइफ टाइम, ऐसे बोल रहा हूँ मजाक से, कोई नहीं देखा कि आप कब मरेंगे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आई कीप लाइक दैट। तो अभी आप इतना विजन रखे, तो मैंने जब भी मैं शुरू किया मैं बोलता था मेरा फ्रेंडशिप आपके साथ 30 इयर्स रहना चाहिए। वो बहुत लोग हंसते थे, ये 30 इयर्स क्या होता है? मैंने बोला कि आप 30 इयर्स सोचेंगे तो 60 इयर्स रहेगा फ्रेंडशिप, आप सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर बोले तो 3 मंथ्स में नहीं रहेगा। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट सर, यू हैव टू सी, ट्रेडिंग इज लाइक लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे ये जिंदगी का जो भी उतार चढ़ाव है वो सब ट्रेडिंग में दिखता है। अगर आप जिंदगी में कैसे आप मैनेज करते हैं अवर इमोशंस, यू कैन मैनेज इमोशंस इन योर, जब आप पिताजी से बात करते हैं, माता जी से बात करते हैं, पत्नी जी से करते हैं, तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं, वैसे ही इधर करने का। तो मैं इतना ही बोलता, कभी भी मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज तो कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस तो बहुत है मेरा, तो वो तो क्या है, 30 साल का एक्सपीरियंस नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम मी। एक्सपर्टीज आई डोंट हैव, इफ आई वाज एक्सपर्ट देन आई वुड बी जॉर्ज सोरोस और वॉरेन बफेट और कुछ ऐसा 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 सोचने का। तो मुझे तो सेटिस्फेक्शन है, मैं इतना ही बोलता हूँ कि इफ यू, इट्स अ लवली करियर, यू शुड टेक इट, इट्स वर्थवाइल। आई हैव माय होल लाइफ आई हैव स्पेंट ऑन इट एंड माय फैमिली हैज टेकन केयर ऑफ, शादी किए, एजुकेशन हुए, भाई का शादी हुआ, सब कुछ हुआ, फ्लैट लिया, सब कुछ ओनली थ्रू मार्केट। कोई ऐसा नहीं है कि एनीथिंग केम आउट ऑफ इट। सो आई एम अ हैप्पी मैन। आज 61 इयर्स हूँ, तो मुझे बिंदास ऐसे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि अरे एक प्रोफेशन में हूँ जो रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, रेस्पेक्टेबल। और एक्चुअली वी आर सीइंग लाइव दैट पीपल फील, जैसे आपने बहुत राइटली बोला कि कसिनो जैसे आते, जीरो हीरो वाले कॉल्स देखे हैं हमने बहुत, और ये सब, बट एज राइटली सेड, मार्केट कैन बी कन्वर्टेड टू लाइवलीहुड, एंड दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव द सेम विजन ऑन AlgoBulls। सो हमारे यहाँ पे भी हम जो स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और जो हम ट्राई कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट और ये सब डेमोक्रेटाइज करने के लिए, वहाँ पे वी आर ट्राइंग फॉर पीपल हु डोंट हैव time to sit in front of the screens for the whole market. Correct. Maybe everyone is not that fortunate, they have some job to do, तो साथ में algo होंगे, और there are systems which are working towards such rapid pace and smart logics and risk management systems. So that is some vision what we are here to democratize. No, that is correct, because see, not you are very right. Not everybody can be a full-time person, and you have to cater to people who cannot be full-time ever. Correct. So that is a very large segment. People like me are outliers. We are just, maybe we are 0.001% of the audience, and everybody has got a different style. My style is different. My style has changed also over time. जब मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता था, मैं रोज ट्रेडिंग करता हूँ, तो that is a different thing. So you people have different, people want to use different technology. आपने बोला algo trading वगैरह वगैरह. So that is the need of the day. अगर किसी को ऐसा चाहिए, तो you have to teach them or train them or give them inputs जो उससे वो benefit होता है. ऐसा नहीं बोलने का कि सब लोग इन्वेस्टर बनो, ऐसा नहीं हो सकता है. सब लोग इन्वेस्टर बने तो वॉल्यूम्स ही नहीं रहेंगे. Speculation is the important thing for investors to survive. It's not the other way around. If you don't have speculation, you will not have volumes. Then there will be no investors. तो कोई ऐसा नहीं सोचता, ऐसा बोलेंगे नहीं इन्वेस्ट करने का, अरे से भाई साहब, इन्वेस्टर तो आप फाइनल होंगे, पहले आप स्पेकुलेटर्स रहेंगे, उसके बाद इन्वेस्टर होंगे आप. यू आर फीडिंग इन्वेस्टर एक्चुअली, बिकॉज ऑफ यू इन्वेस्टर सर्वाइव्स. अगर ट्रेडर्स ही ना रहे और वॉल्यूम्स ही ड्राइव नहीं हो रहे हैं, तो वी वुड मूव आई थिंक 10 to 15 years backwards. जो इतना वॉल्यूम आया, आई थिंक NSE has one of the major contributions towards the option, bank nifty or nifty. There are, so last 2 to 3 years predominantly were for option selling guys. So ये सारे जो टेक्निक्स इवॉल्व हो रहे हैं, जो सिस्टम्स आ रहे हैं, जो हम भी मार्केट को केटर कर रहे हैं. सो लकी इनफ टू बी आई थिंक ऑफ दैट एज ऑफ व्हाट इज योर एक्सपीरियंस. ठीक है, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा एज 30 साल का है.
So in this age, we are very lucky to cater to the trading community, wherein people, we can even say that we are a minuscule part of that ecosystem जो traders के लिए काम कर रहा है और we feel very lucky in Correct. that sense. Correct. Correct. So it's wonderful sir and truly आपने जो knowledge दिया ना सर इस session में it's golden. जैसे मैं दो तीन चीजें तो कट नहीं करने वाला हूँ आपने जो बताई भले ही आप मुझे बोल भी दो आपने बताया आपके वाइफ और आपके बीच में ट्रेडिंग के नहीं, कुछ कट मत कीजिए, नहीं वो तो झगड़ा होता रहता है सर, बट शी स्टिल नॉट डिवोर्स मी. 30 इयर्स हो गए, 37 इयर्स हो गए हमारी शादी होके. Yes, I'm just joking, sir. It's really been very interesting to know you, and I think this is the time where I really enjoyed my time with you, and I hope audience also enjoy. And so there will be questions. So I think we are almost done for the day. I'll give you time wherein you can throw some light on the topics you like. And but it was a really very insightful session today. We will hold some more sessions with you. So I'm already reserving your time on air right now. But it was truly wonderful to know you, sir. So Thank you very it's much. all Thank you. yours. Please tell us something what you would like to add. You want me to add? I will tell you something where overconfidence, about overconfidence. अभी मैंने बताया कि क्लब हाउस सेशन में एक टाइम था सर 1998 में दिस NSE decided we will have derivatives 1998 में किया. तो पहले बैच का ब्रोकर्स और डीलर्स को उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए थे. वो टाइम पे कुछ देयर वाज नो हैंडबुक ऑफ क्या derivatives available. So they called us. So 30 members were called, 30 people. तो हमने जाके वो NCFM एग्जाम था, पहला NCFM एग्जाम we took in 1998. So they prepared us for that. NSE itself prepared us. तो 3 दिन का ट्रेनिंग दिए और NCFM एग्जाम हमने दिए. उसमें मुझे मिला 94% out of 100. ओके, तो मैंने सोचा कि अपन ही भगवान है, क्योंकि क्या है तो हमको 94% मिला है इसमें. तो उसके बाद 3 years later हमको the NSE actually began, first they began Nifty futures, nobody participated. Then they began Nifty options, nobody participated. Stock options, nobody participated. November 2001 में they started stock futures. तो वो टाइम सबको वो because everybody knows बदला 1990s में बदला था, तो बदला ट्रेडिंग. सो सब लोग घुस गए, हम भी. We also took this one derivative membership वो टाइम. So 2001 December. तो वो टाइम में क्या हुआ? This is a very important story which I thought I should tell you. There is a lot of lessons in this. So I got 94. I thought I know all straddle, strangle, iron condor, butterfly वगैरह वगैरह. तो वो टाइम पार्लियामेंट अटैक हुआ 2001 December 13th को पार्लियामेंट अटैक हुआ. देन वो उसका ब्लेम पाकिस्तान पे गया. तो मार्केट वो 2001 में क्या हुआ, तो .com बस्ट हो गया था 2000 में. 2000 मार्च से .com बस्ट हो गया था. 2001 में वो 9/11 भी हुआ था. सो 2001 वाज अ बैड ईयर बिकॉज इट वाज अ बेरिश मार्केट. कुछ चलता ही नहीं रहता. देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन. वो पॉलिटिकली आल्सो वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, बट वो जॉर्ज फर्नांडिस बोल के एक मिनिस्टर थे, वो ही वाज अगेंस्ट डिसइन्वेस्टमेंट, always used to go against it. It is a coalition government tha. And then this parliament attack took place in 2001. So there was what kya bolte hain, doom and gloom wo time pe, kuch chalta hi nahi rehta. So when first thing what we did was I said let me do something called out of the money and in the money options ko sell kare, kyunki kya hai wo kuch ऊपर ही नहीं जाएगा ये मार्केट, तो फालतू मार्केट है बोल के दिसंबर में मैंने शुरू किया. तो दिसंबर में इमीडिएट सक्सेस मिला, क्योंकि वो दिसंबर इट वाज अ फ्लैट मार्केट. जनवरी में भी ऐसे किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब भी मार्केट राइज होता था मारने का, सेल करने का कॉल ऑप्शंस एट द मनी और आउट ऑफ द मनी. तो इतना आसान हो गया कि क्या मार्केट किधर भी नहीं जाता, क्योंकि क्या है वो टाइम पे ऑपरेशन पराक्रम बोल के एक वाजपेयी जी ने एक आर्मी फॉर्मेशन किए थे कि they were on the Rajasthan border. Any time they will attack Pakistan. We will attack Pakistan. 6 months. So I know this 6 months nothing will happen in the markets because it is
आई हैव रेड अबाउट इट, पीपल डोंट नो। हम तो सैनिक हैं, तो हम तो हिस्ट्री पढ़े हैं, हम तो पढ़े हैं कि फॉर्मेशन क्या है। मेरे दोस्त बैठे हैं उधर राजस्थान बॉर्डर पे, तो हमको मालूम है कि ये तो टेंशन ही रहेगा। सो टेंशन टेंशन टेंशन। 2002 वाज अ वॉश आउट। तो क्या हुआ, अक्टूबर में वॉल्यूम्स भी कम थे बट वी वर एबल टू मेक मनी, आई वाज एबल टू मेक। अक्टूबर में रवि नारायण बोल के सेकंड एमडी ऑफ एनएससी आए थे, जस्ट अबाउट टू टेक ओवर एनएससी। तो वो मद्रास में आके ब्रोकर लोगों को मिलके तो उसने पूछा कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कैसा चल रहा है। तो एक जन भी पॉजिटिव नहीं बोले, कि बोले सर ये कंफ्यूजन है सर, हमको बदला ही चाहिए। ये क्या बदला, ट्रेडिंग क्लीन था, ये फ्यूचर्स ऑप्शन पता ही नहीं, ये ऑप्शंस ये हमको बेरिश हुआ तो पुट ऑप्शंस बाई क्यों करने का। नॉर्मली व्हेन यू आर बेरिश यू शुड सेल, नो वी शुड बी सेलिंग पुट ऑप्शंस, व्हाई वी शुड बी बाइंग पुट ऑप्शंस। इतना भी समझदार नहीं थे ब्रोकर्स, बड़े बड़े ब्रोकर्स। तो मेरा ये क्या बोलते हैं, यू फूलिशनेस, जो मैंने उसको बोला कि सर इट्स सो इजी टू मेक मनी इन ऑप्शंस। सब लोग आश्चर्य हो गए कि कैसा इजी हो गया, आप हमको तो ये मालूम ही नहीं, आप कैसे इजी बोल रहे। तो मैंने बोला कि ये ऑल एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी। अभी तो मैं इन द मनी कर रहा हूँ, अभी तो मार्केट खाली पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सब लोग मुझे पकड़ के बोले कि हमको भी सिखाओ। तो हमने बोला अरे सिखाएंगे यार, क्या है, बड़ा है ये तो, चाइल्ड्स प्ले है ऑप्शंस। मैंने ऐसे सोचा था क्योंकि मुझे तो 94% मिला है और 10 मंथ्स प्रॉफिट मिला है, तो मैंने सिखाया उसको। अक्टूबर में सब लोग मार दिए कॉल ऑप्शंस, सेलिंग कॉल ऑप्शंस, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अरे पैसा मिल गया। तो नवंबर आया, तो मैंने सोचा कि अभी नवंबर इज द वर्स्ट मंथ इन अ ईयर। नॉर्मली नवंबर नथिंग हैपेंस, अक्टूबर में वोलेटिलिटी रहता, नवंबर में कुछ नहीं रहता, ये तो वोलेटिलिटी नहीं। तो मैंने पूरा धड़म धड़म बोल के मैंने सेल किया। Every month till October, the market never closed on the last Thursday. Over time pe, there were no weekly options, there were only monthly options. So last Thursday of the month, invariably, either it will close near the low or below the midpoint of the month. तो आपको लॉस चांस इतने नहीं है, क्योंकि क्या है, आपने यू विल सेल ऑन रैली इन द मार्केट. So at the end of the month, you will get it because it will be below your break even. I mean, it will be, you will make money. November में it went up slightly, तो मैंने सेल किया. It went up more, again सेल किया. नवंबर थर्ड वीक आया, अगेन सेल किया. नवंबर मंथ में निफ्टी वेंट अप 15%. 15% इट वेंट अप. तो मेरा सब कुछ जो मैंने 10 मंथ्स में जो कमाया था, 70% of my profits got wiped out. 70% in 1 month, because I was so arrogant and I thought I know everything in the money, at the money and all. I did not do any great strategies. So एक महीने में मेरा 70% गया. बहुत सारे लोगों का पूरा 100% भी गया. क्योंकि क्या है, 15% means if you take 4 times, then already 60% is gone. If you take leverage of 4 times, they used to allow 8 times. Those days 8 times leverage. मैंने 4 times लिया तो भी. So that time was one such thing. There is nothing like easy money. वो market आपको देगा. एक दफा ठपार बोल के एक पूरा लेगा. So that is the power of the short covering. और what अब जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो mother of short squeeze होगा, मैंने I am just relating to this. This is just my last bit I will tell you. Is again here we are seeing now till May everybody was bullish in the market, in Indian market. आप CNBC लगाओ किधर पे, वो बोलते हैं I don't want to utter a 4-letter word. वो 4-letter word क्या है? Bear. Okay, आप सोचते वो 4-letter नहीं है, ये 4-letter bear. People don't want to talk about bear market. अब भी जो भी स्ट्रेटेजिस्ट है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं ये इतना ही बोलता हूँ कि मार्केट पीपल आर कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट इट इज अ बेयर मार्केट. कंप्लीटली कन्विंस्ड. मैंने चार्ट में देखा कि जब मार्च 10th या 9th में जब 15,673 कुछ बॉटम हुआ, उसके बाद एक रैली हुआ. विद इन 3 weeks इट वेंट टू 18,114 जो अप्रैल 4th को हुआ टॉप. तो उसके बाद मैं बेरिश था. मैंने एक प्रोग्राम भी किया स्पेसेस में, सेल इन मे एंड गो अवे. उसके बाद वो टाइम पे बहुत सारे लोग बोले कि आप ये बेरिश क्यों हो. दैट टाइम इट वाज 17,400.
द निफ्टी. सो मैंने रिसर्च करके मैंने बताया कि मिनिमम इट विल कम 8 to 10% इन मे. तो मैंने रिकॉर्ड लिया था 20 years. So it fell down 8 to 10%. It fell down to 15,800. It came almost like double bottom. थोड़ा on 12th. मैंने 12th रोजाना मैं I check out my numbers क्या हो रहा है. I was completely taken aback. मैंने सोचा ये जो अभी गिर रहा है जो डबल बॉटम में, ये बेयर मार्केट का एंडिंग हो सकता है. मैं ये नहीं कहता हूं कि हो गया या होएगा. चांसेस बहुत बड़ी है. जब भी मार्केट नीचे गिरता था, जब सब अक्टूबर 19 से जो गिरा 18,600 से जो गिरा, then it again went to 18,350 in January, again it fell down, again it went to 17-18 February, it went to 18,1 in April. So 18,000 was coming 3-4 times. It was coming 3-4 times. People were thinking abhi new high aayega. Well, I was very sure it will not come because of the pattern. तो जब ये डबल बॉटम हुआ, then I said let me see the charts. मैंने आश्चर्य हुआ मुझे कि मार्च में बॉटम जिसकी लगी वो सेक्टर वाइज बैंक निफ्टी, द बॉटम ऑफ मार्च बैंक निफ्टी हैज नॉट बीन हिट इवन लास्ट वीक. जब निफ्टी गिरा 15,183 जब गिरा, बैंक निफ्टी डिड नॉट कम टू मार्च बॉटम, डिड नॉट कम. In May, I'm talking of this is in May 12th. On May 12th, though, even Nifty has not come to the March bottom. So only double bottom. So Bank Nifty was much higher than March 8th ka, 9th ka bottom. That is Bank Nifty. Second, and Bank Nifty kya? That was on March 4th. RBI ने panic बना के interest rates increase किए. Normally banks will get hit first, but banks did not get hit. ये first warning sign था कि bears के लिए. ये बॉस मैं तो नहीं जा रहा हूं, नीचे नहीं जा रहा हूं. मार्केट बोल रहा है मुझे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा. ये बैंक निफ्टी. देन आई सॉ इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएगा तो किसको पड़ेगा? ऑटो स्टॉक्स, बिकॉज दे आर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव. ऑटो इंडेक्स इज हायर देन मार्च. देन इन्फ्लेशन बढ़ा तो किसको हिट होगा? एफएमसीजी, क्योंकि वो डाउन मार्केट करेंगे. लीवर, आईटीसी वगैरह वगैरह. एफएमसीजी इंडेक्स इज हायर देन मार्च बॉटम. सो आई सेड इन मार्च बॉटम ये बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, ऑटो इंडेक्स नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, एंड इन्फ्लेशन सेंसिटिव एफएमसीजी, ये तीनों इंडेक्स दे आर नॉट गोइंग देयर. ये दूसरा तरीका का बॉटम है. तो मैंने इमीडिएटली मैंने स्टॉप किया. मैंने बताया कि आई विल नॉट शॉर्ट सेल बोल के मैंने ट्विटर पे एक थ्रेड डाला. वो सब लोग जो बुलिश थे अभी वो बेरिश बन गए थे. वो मुझे को चिल्ला रहे हैं कि ट्रोल कर रहे हैं कि अरे बॉस आप 10 days बैक यू डिड वन सेल इन मे एंड गो अवे, अभी बोल रहा है तू इधर है, ये कैसा पलटा आपने? मैंने सबको बताया कि आई डिड वन स्पेसेस एंड क्लब हाउस सेशन बोल के. दिस इज व्हाट हैज चेंज्ड. दिस व्हाट हैज चेंज्ड. अभी ये महीना हो गया तो पीपल आर नाउ टॉकिंग. अभी जो ब्रेक हुआ 15,763 ब्रेक हुआ तो अभी बोल रहे हैं नहीं यू हैव टू चेंज योर पोजीशन बिकॉज नाउ इट हैज ब्रोकन द बॉटम. तो मैंने बोला कि यू लुक एट ओवरऑल ग्लोबली एंड इंडिया इटसेल्फ, दिस इज नॉट ब्रोकन. नन ऑफ दिस सेक्टर्स हैव गॉन, नाइदर बैंक निफ्टी नॉर क्या एफएमसीजी नॉर ऑटो. देन दे सेड नहीं यूक्रेन वॉर चल रहा है रशिया में. मैंने बोला कि अगर यूक्रेन वॉर चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, ये आज तो नहीं है, फरवरी से चल रहा है, तो विच इज द कॉन्टिनेंट विच इज अफेक्टेड मोस्ट? यूरोप. इन यूरोप विच इज द कंट्री मोस्ट अफेक्टेड? जर्मनी. जर्मनी का डैक्स इंडेक्स is still trading above the March lows. तो क्या बता रहा है वो मार्केट, इक्विटी मार्केट बोल रहा है कि आई डोंट केयर फॉर द वॉर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स माय कंट्री, आई एम स्टिल अबव इट. दैट मीन्स द bears आर नाउ इन ट्रबल. इसलिए मैंने बताया कि यू शुड नॉट बी bearish एट ऑल. तो बहुत लोग मुझे चिल्ला रहे हैं, अभी स्पेसेस में मुझे ट्रोल कर, बहुत सारे गंदी गंदी बात भी कर रहे हैं ट्विटर पे मुझे. चलो अभी हम तो सैनिक है, हम बहुत सारे बुलेट्स ऐसे देखे हैं, ग्रेनेड्स देखे हैं, बॉम्ब्स देखे हैं, तो हमको तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता. मुझे ये दुख की बात यही है कि ये लोग दे आर फॉलोइंग सम पीपल और सम पाइड पेपर. दे हैव बीन ब्रेन वॉश टू थिंक नाउ वी आर इन अ बेयर मार्केट. वी आर नॉट इन अ बेयर मार्केट, वी आर बिगिनिंग. तो मैंने
I put something on Twitter the other day. This is the first time in history of 30 years I have seen when market is at the bottom, people are bearish. That is normal. Prices are down because that's why people are feeling bad. This is the first time I have noticed that fundamentally things are really good, but the market is not accepting. First time I'm seeing. Normally, whenever the market bottoms out, both fundamentals and technicals will be back. This is the first time I'm seeing. Dekho aap monsoon acha hai. IIP is up this month. Then inflation is coming down. Commodity basket, they are in a bear market. Sugar 61%, wheat 30%, iron ore 40%, even oil is about 22%. Sub bear market 20 and above is bear market. So they're all in bear market. Commodities in bear market, inflation is peaking out. 10-year yield, US 10-year yield is not going up anymore. From 3.5 it has come to 3.15. Oil has not gone up. Wheat, which was supposed to be there, edible oil, which was stuck by Indonesia. Now there is a crash in edible oil in Indonesia. मैं वो चार्ट देखा, मैंने सोचा ये सब देखे तो so much of positivity is there, but people are worried. Not only worried, they are very bearish. This will create a problem if you take a position on the negative side, because then when they have to cover, because जो long जाता है ना सर, एक दफा वो परचेज करता है भाग जाता है. ये जो शॉर्ट जाता है ना, शॉर्ट प्लस he has to buy back. So every bear is a bull. Every bull need not be a bear, because a bull will buy and go away. A bear has to be a bull. So you imagine the bull will be there and the bear will become bull also there. Then what will happen to the market? तो मैंने लिखा है कि next few days, weeks वगैरह, I don't know, you will see a major short covering rally. इसीलिए मैं आज भी confident था कि very less chance of us closing in the red. तो इसलिए 2-3 दफा ऐसा करके करके मेरे ख्याल ऊपर गए. 30th of June is very important day because that is the half yearly ending, Thursday, monthly ending. They will shift their positions of equity and debt realignment करते हैं. 30th June, in my opinion, will be a very strong bullish day. This is what my perception is. अभी ऐसा नहीं कर सकता कि it will be. The probability is very high. So I'm looking forward to Thursday as a bull day rather than a bear day. Most people are saying it will collapse on Thursday. According to me, it should happen exactly opposite. I wanted to say so. That's all. All I can say is this much. Just don't be arrogant. Be humble. Look at it. Read from not only one angle. Look for 360 degrees. You'll get your answers more often than not. Okay. So definitely. So I am pretty sure you will be right in the analysis what you have performed, because you have given a strong counterpoints to what the market is. एंड यही होता है ना सर कि जो लीडर बनता है या जो विनिंग ट्रेड्स होते हैं वो बेयर मार्केट में बाइंग साइड पे ही होते हैं, क्योंकि अगर डर के बैठ गए व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, नो वन और द वॉरेन बफे वुडंट हैव बिकम द वॉरेन बफे ही इज टुडे. सो respect your thoughts and the analysis what you shared with us, and it was truly our honor to get a huge impactful knowledge which people can absorb, and actually this would be the time where actually people hear to your podcast, that's your video, wherein people can understand. Maybe there is some another Vijay who is actually doing a walk but hearing you out and making his attitude change towards the trading, and maybe even if we are able to change one person's career and move him towards a better journey, it would be, I would say that this has created an impact. Correct. So, that's correct. Thank you on that. Yes, that's the attitude you should have. That one person, I'll change only one person. If you change one person, that's good enough. If I change myself today, it's good enough. Definitely, sir. Definitely. But we will change some more people. Like we'll keep doing such series, and it was really a honor to be with you on the show, and really appreciate your time. Thank you so much, sir. Yeah, thank you. Thanks a lot.